actually get my finance. So these are the main 4 areas. तो इन चारों को जब हम मिलाते हैं तो हमारा क्या बनता है, कैपिटल स्ट्रक्चर. ठीक है. अगर इसके अंदर हम अपनी करंट लायबिलिटी, अगर कोई कंपनी बहुत अच्छे प्रॉफिट अर्न करे तो हम कह रहे हैं बहुत अच्छी वैल्यू है इसकी. लेमैन टर्म्स में अगर हम बोल रहे हैं कि वो प्रॉफिट्स नहीं कमा पा रहे, देन देयर इज द कंपनी इज हैविंग बैड वैल्यू. ठीक है. एंड वैल्यू कैसे डिपेंड करेगी? सो ओवरऑल अगर हम क्रक्स देखें, हम कहते हैं कि हमारी जो कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज है, वी विल स्टडी 4 थ्योरीज. ठीक है. One is the net income approach, the second is the net operating income approach, third is the traditional approach, and उनका total assets क्या रहेंगे, they will remain the same. No retained earnings, कोई retained earnings नहीं है. I'm again saying there is only 2 sources of capital, equity and debt, and profits they remain the same. So EBIT भी same रहेगा. What? 50,000? नहीं sorry, हाँ 1 लाख रुपीज तो कितना हो गया, 50,000. So मेरे पास कितना बचा, EBT 4,50,000. ठीक है. So if this is the this is what, this is something that is left for the equity holders. If this is left for equity holders, can I calculate the overall equity? 15 लाख रुपए. So overall value मेरे पास क्या हो गई, 57 lakhs 50,000. ये हो गई मेरे पास ओवरऑल वैल्यू. नाउ कैन आई कैलकुलेट KO कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, योर 5 lakhs जो मेरी EBI. Hi everyone, so welcome back to my channel. So today we will start with unit 2 of corporate finance, और financial management का अगर सब्जेक्ट है तो उसमें unit 3. We will talk about capital structure theories. Okay, so what do you mean by capital structure? Now capital मतलब कहाँ से capital आई है. So what all the sources of finance will form part of my capital structure? This can include equity, your debt, your preference shares and your retained earnings. ठीक है. ये 4 components हैं जहाँ से हमारा sources of finance बनता है. ठीक है. So from where can I actually get my finance? So these are the main 4 areas. तो इन चारों को जब हम मिलाते हैं तो हमारा क्या बनता है, कैपिटल स्ट्रक्चर. ठीक है. अगर इसके अंदर हम अपनी करंट लायबिलिटीज और ऐड कर दें, सो दैट विल मेक आवर फाइनेंशियल स्ट्रक्चर. सो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर नॉट ओनली इंक्लूड्स आवर सोर्सेज ऑफ फंड्स, लॉन्ग टर्म फंड्स, बट ऑल्सो करंट लायबिलिटीज. तो फ्रॉम द लायबिलिटी एस्पेक्ट की अगर बात करी जाए तो ऑल द लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फंड, equity, debt, preference and retained earnings, they form your capital structure. Whereas if we add current liabilities, we will make it the entire financial structure. Okay, this is a very basic question, and for finance interviews ये हमेशा आता है कि what do you mean by financial structure? Everybody says कि ये तो हमारा जहाँ से sources of fund है, but no, capital is, we are talking about the long term source, but when we add the short term liabilities into our sources, we call it as a financial structure. So now in capital structure theories, basically we are talking about how the combination of debt and equity affects the value of the firm. Okay. Now what do you mean by the value of the firm? The value of the firm refers to किसके ऊपर डिपेंड करी जाएगी value of the firm? Whatever profits that you are earning. अगर कोई कंपनी बहुत अच्छे प्रॉफिट अर्न करे तो हम कह रहे हैं बहुत अच्छी वैल्यू है इसकी. लेमैन टर्म्स में अगर हम बोल रहे हैं कि वो प्रॉफिट्स नहीं कमा पा रहे, देन देयर इज द कंपनी इज हैविंग बैड वैल्यू. ठीक है. एंड वैल्यू कैसे डिपेंड करेगी, व्हाट अर्निंग्स कैसे डिपेंड करेंगे, ऑन द इन्वेस्टमेंट डिसीजंस दैट वी हैव डन. एंड इन्वेस्टमेंट डिसीजंस इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट और कॉर्पोरेट फाइनेंस इज द सोर्स ऑफ फंड्स दैट यू टॉकिंग अबाउट. ठीक है. कहाँ पे आपने इन्वेस्ट किया, कैसे इन्वेस्ट करोगे, पैसे से इन्वेस्ट करोगे. तो इनडायरेक्टली घूम फिर के क्या आ जाती है, वैल्यू ऑफ द फर्म डिपेंड्स अपॉन 2 things. 1 on the earnings of the firm and 2 on the cost of capital of the sources of finance. ठीक है. So cost of capital क्या है, तो वैल्यू ऑफ द फर्म को कैपिटल स्ट्रक्चर कैसे इफेक्ट करता है वो हम बात करें कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज में. सो ओवरऑल अगर हम क्रक्स देखें, हम कहते हैं कि हमारी जो कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज है, वी विल स्टडी 4 थ्योरीज. ठीक है. One is the net income approach, the second is the net operating income approach, third is the traditional approach, and fourth is the MM hypothesis. So MM hypothesis में भी 2 करेंगे हम, with tax and without tax. ठीक है. 2. Now
फर्स्ट नेट इनकम अप्रोच एंड नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, ये कहते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर इज net income approach. And now herein, a net income approach and traditional approach, they suggest that capital structure is relevant. For whom? Capital structure is relevant to define the value of the firm. मतलब कि कितना मैंने डेट लिया है, कितना मैंने इक्विटी लिया है, उससे मेरी वैल्यू ऑफ द फर्म अफेक्ट होगी, राइट? सो दिस and this, they won't suggest that capital structure is relevant. We need to see कि हम कितना नेट ले रहे हैं, कितना इक्विटी ले रहे हैं, ताकि हमको पता चले हमारी अर्निंग्स क्या होंगी, ठीक है? वर्सेस नेट ऑपरेटिंग अप्रोच एंड एमएम हाइपोथेसिस, दे सजेस्ट दैट कैपिटल स्ट्रक्चर इज इररेलेवेंट. इन दोनों ने क्या बोला, एमएम हाइपोथेसिस ने और नेट ऑपरेटिंग इनकम ने बोला कि आप कितना डेट लेते हो, कितना इक्विटी लेते हो, दैट इज इररेलेवेंट टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द फर्म. इट विल हैव नो इम्पैक्ट ऑन द वैल्यू ऑफ द फर्म, ठीक है? ये कहते हैं. So they move together, and this approach and this approach, they move together. Now overall, if we talk about the assumptions, we will say assumptions क्या है overall capital structure theories की. Two sources of capital हैं. वो दोनों sources of capital क्या है? Debt and equity. ये दो sources of capital हमारे पास है, इसके अलावा कुछ नहीं है. We do not have preference shares, we do not have retained earnings. Then total assets they remain the same. किसी भी organization की जिसकी हम यहाँ पे चारों थ्योरीज के बारे में बात करेंगे, उनका टोटल एसेट्स क्या रहेंगे, दे विल रिमेन द सेम. नो रिटेन्ड अर्निंग्स, कोई रिटेन्ड अर्निंग्स नहीं है. आई एम अगेन सेइंग देयर इज ओनली टू सोर्सेज ऑफ कैपिटल, इक्विटी एंड डेट. एंड प्रॉफिट्स दे रिमेन द सेम. सो ईबीआईटी भी सेम रहेगा. नाउ दीज फॉर assumptions, they are common for all the approaches, but all the approaches will also have certain assumptions which are specific to that approach. तो आपको वो भी हम करेंगे, जब हम हर एक थ्योरी करेंगे तो हम वो अप्रोच, वो assumption भी करेंगे. So overall, this is how we are going to start. Now let's first focus on the first approach, that is the net income approach. Okay, so let's focus on that and see how they are saying that capital structure is relevant for the firm. Now let's focus on a practical question to prove the point कि जितना हम debt use करते जाएंगे हमारे लिए बेटर है. सो द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल विल कीप ऑन रिड्यूसिंग, ठीक है? सो द क्वेश्चन इज समहाउ लाइक दिस. नेट इनकम अप्रोच की दैट ईबीआईटीज कितना मेरे पास 5 लाख रुपए, केई 10% है, केडी 5% है, डब्ल्यूएसीसी इज अगेन क्वेश्चन मार्क, एंड वैल्यू ऑफ द फर्म इज अ क्वेश्चन मार्क. मतलब दे आर आस्किंग अस टू फाइंड आउट व्हाट इज द डब्ल्यूएसीसी एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द फर्म व्हेन यू आर गिवन कॉस्ट ऑफ इक्विटी एज 10%, कॉस्ट ऑफ डेट एज 5% एंड ईबीआईटी एज 5 lakhs. तो केस नंबर 1 में डेट इज 10 लाख रुपीज, ठीक है? हमारे पास डेट कितना इनिशियली हमने लिया, दिस इज द ओरिजिनल सिचुएशन. इस सिनेरियो में अगर हम पहले क्या करेंगे, ईबीआईटी कितना मेरे पास 5 लाख. सो व्हाट डू वी सब्ट्रैक्ट फर्स्ट, वी सब्ट्रैक्ट द इंटरेस्ट अमाउंट. इंटरेस्ट 5 लाख पे 10 लाख पे 5% इज कमिंग आउट टू बी व्हाट, 50,000. नहीं सॉरी, हाँ 1 लाख रुपीज, तो ये कितना हो गया 50,000. सो मेरे पास कितना बचा, ईबीटी 4,50,000, ठीक है? सो इफ दिस इज something that is left for the equity holders. If this is left for equity holders, can I calculate the overall equity? By what? If I divide overall earnings, EBT by my KE, can I get my total equity? यही तो है ना, इक्विटी अपॉन द कॉस्ट ऑफ इक्विटी. हाउ डू वी कैलकुलेट टोटल इक्विटी, कितना अमाउंट ऑफ इक्विटी है? अगर हम टोटल अर्निंग्स को केई से डिवाइड करेंगे तभी तो हमारी टोटल इक्विटी आएगी. सो हमने यहाँ पे क्या किया, 4,50,000 को वाई हमने केई से डिवाइड कर, कि ये अमाउंट किसके लिए अवेलेबल है, केई के लिए अवेलेबल है. तो अगर मैं ईबीटी को इक्विटी से डिवाइड करूं तो मेरे पास कॉस्ट ऑफ इक्विटी आ जाएगी. वर्सेस अगर जो अवेलेबल है इक्विटी वालों को अगर उसकी कॉस्ट से डिवाइड करूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ओवरऑल कितना इक्विटी मैंने इन्वेस्ट किया था इक्विटी शेयर होल्डर्स वालों के लिए. तो मेरे पास ई कितना आ जाएगा, 4,50,000 divided by 10%, which is given to us cost of equity. So this is equity is coming out to be 45 lakhs. Plus debt कितना है मेरे पास, already given in the question, 10 lakhs. So overall what do I have, 55 lakhs. Overall capital. Now if I want to calculate my KO, which is WACC, can I do it by EBIT upon value of the firm? So E plus D क्या होता है, V, which is this.
सो EBIT कितना है मेरा 5 लाख रुपीज डिवाइडेड बाय वैल्यू कितनी निकली ऑफ द फर्म 55 लाख रुपीज इनटू 100, तो ये मेरा कितना आ गया, अगर इफ आई डिवाइडेड ये कट गए 500 100 by 11, so 9.09% is the case overall cost of capital in case number 1 when we have our debt as 10 lakh rupees and cost of equity as 10% and cost of debt as 5%. Now moving to case number 2. In this scenario, what is our EBIT? 5 lakhs. अब debt interest कितना है 15 लाख पे 5%, दैट इज 75,000 रुपीज, तो ये मेरे पास कितना बच गया 4,25,000. नाउ विद द सेम इंटेंशन अगर मैं ई बता सकती हूँ इसका 42,50,000 है. यस, डी कितना मेरे पास 15 लाख रुपए. सो ओवरऑल वैल्यू मेरे पास क्या हो गई 57,50,000. ये हो गई मेरे पास ओवरऑल वी. नाउ कैन आई कैलकुलेट KO. KO कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, योर 5 lakhs जो मेरी EBIT था डिवाइडेड बाय द वैल्यू ऑफ द फर्म इनटू 100. सो दिस इज कमिंग आउट टू बी व्हाट, अगर मैं वैसे डिवाइड करूं 5,000 डिवाइडेड बाय 575, सो दिस इज कमिंग आउट टू बी व्हाट 8.69% is my KO in the scenario when I increased my debt from 10 lakhs to 15 lakhs. My overall cost of capital reduced from 9.09% to 8.69%. ठीक है, अब केस नंबर 3 हम लेते हैं in a scenario where we have debt that is 2 lakh rupees. अब हमने डेट पहले कितना था 10 लाख से हमने डेट क्या कर दिया कम. अब इस सिनेरियो में बताओ क्या होगा. So let's have a look at that. Now, in this scenario, what initial EBIT I had 5 lakhs. अब इसमें इंटरेस्ट कितना था 2 लाख रुपए पे 5%, तो कितना हुआ 10,000 rupees. So overall what I'm left with 49 lakhs. Sorry, 4,90,000. I'm left with 4,90,000 as my EBT. Now with the same intention, can I calculate my equity? कितना आएगा 49 lakhs. ठीक है, डेट कितना था 2 lakhs. So overall मेरा कितना हो गया 51 lakhs. 51 lakhs is clear with me? Yes. So since it is 51 lakhs, can I now calculate KO with this formula? EBIT मेरे पास कितना था 5 lakhs divided by what is the value of the firm 51 lakhs into 100. तो मेरा ये कितना आ गया 9.8% is my KO. Now do you see that जैसे मैंने डेट जैसे ही कम किया मेरा ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ गया. ठीक है, इनिशियली मैं क्या कर रही थी, मैं 10 लाख रुपए का डेट ले रही थी, तो मेरे पास कितनी आई 9.09% इज माई कॉस्ट ऑफ कैपिटल. नाउ जब मैंने डेट को इंक्रीज कर दिया तो मेरी कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम हो गई, और जब मैंने डेट को कम करा तो मेरी कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ गई. सो दिस इज द एंटायर रीजन. दिस इज व्हाट आई टोल्ड यू दैट विद द हेल्प ऑफ अ क्वेश्चन आई विल मेक यू अंडरस्टैंड कि हमें कैसे इसको आगे लेके जाना है. इन द सेंस हाउ आर वी गोइंग टू अंडरस्टैंड. इसने सिंपल बात बोली थी, जैसे डेट बढ़ाओगे वैसे वैल्यू ऑफ द फर्म बढ़ जाएगा, और वही सिनेरियो हुआ. जैसे जैसे हम डेट बढ़ाते गए मेरी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होती रही कम, और जैसे जैसे डेट कम करते गए मेरी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होगी बढ़ती रही. सो दिस इज हाउ वी अंडरस्टैंड द NI approach. That is the first approach of capital structure. I hope that you have understood it, and with going forward we will look on all the remaining 3 approaches. That is the traditional approach, NOI approach, and the MM hypothesis, which has 2 propositions, one with tax and one without tax. Okay, thank you.